Hello students, we are going to discuss our next chapter, that is banking, commercial banks and the central bank. In the syllabus of 2020 CBSE, we just have to consider about what is commercial bank, what is central bank, and what are the functions of central bank and the monetary policy initiated by the central bank. We have to focus about only these concepts. Other concepts we need not to bother about. Now, what is commercial bank? Commercial bank is a financial institution which accepts deposits from the public and advance loan to the public for various productive purposes. That is known as commercial bank. तो पोस्ट ऑफिस को हम कमर्शियल बैंक नहीं कह सकते क्योंकि पोस्ट ऑफिस सिर्फ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है लेकिन वह किसी को लैंडिंग नहीं करता. दैट्स व्हाई वी कांट से दैट द पोस्ट ऑफिस इज अ कमर्शियल बैंक. To say commercial bank, we need to do these two works. One is accepting deposits, other one is advancing loans. Now the various concepts are given over here like secondary functions, primary functions, etc. We need not to bother about. Now the major concept of this chapter is the central bank and its function. Now what is central bank? Here in India it is RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is an apex institution which is having an exclusive right to issue the currency notes. It is the bank of the government. It is the bank of the bank. It performs various functions and it is having sole responsibility to control the entire banking system of the country. Now, what are the functions of central bank? The very first function is the bank of issue. Yeah, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द कंट्री. अब इसमें हमें क्या करना है? सेंट्रल बैंक को राइट है कि वो ही कोई नोट छाप सकता है 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के डिनोमिनेशंस के जितने भी करेंसी नोट्स हैं उन सभी को प्रिंट करने का राइट, एक्सक्लूसिव राइट आरबीआई के पास है. 1 रुपए का नोट जो सेक्रेटरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो छापता है और जितने भी करेंसी कॉइन्स हैं वो भी सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू होते हैं. 2 रुपी टू 2000 रुपीज नोट्स आर इशूड बाय दी आरबीआई. अब ये एक्सक्लूसिव राइट इसलिए दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट बहुत सी एजेंसीज को ये काम दे देगी नोट छापने का तो एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि असली नोट कौन सा है, नकली नोट कौन सा है. सेकेंड थिंग इज, if you want to control the money supply, it is not viable for the government to control the money supply because so many agencies are there. It is very difficult to control all the agencies. That's why the RBI is given the exclusive right to issue the currency notes so that the money supply can be controlled in a very easy manner. Second thing is banker of the government. Now, what is the role of the banker? RBI is having the same relationship with the commercial government as the commercial banks is having relationship with its customers. जिस तरह से हमारा कमर्शियल बैंक हमें बहुत से मुद्दों पर हमारी हेल्प करता है, हमें एडवाइस करता है, इसी तरीके से जो आरबीआई है बहुत से फाइनेंशियल मैटर्स पे, फाइनेंशियल पॉलिसीज पे या गवर्नमेंट बजट के इश्यूज पर जब भी गवर्नमेंट को कोई रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी सजेशंस की तो ऑल द सजेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट. इन दिस वे इट वर्क्स एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट. करंट अकाउंट्स मेंटेन करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स करता है आरबीआई. तो जिस तरह से कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए वर्क करता है, इन द वेरी सेम मैनर द आरबीआई वर्क फॉर द गवर्नमेंट. देन द बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन फंक्शन ऑफ द बैंक. नाउ व्हाट इज बैंकर्स बैंक? अगेन वही बात आती है, एज पब्लिक इज हैविंग रिलेशनशिप विद द कमर्शियल बैंक, इन द वेरी सेम मैनर द RBI is having relationship with the commercial banks. जिस तरीके से कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के एसेट्स डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उनके बिहाफ पे पेमेंट करता है, इसी तरीके से आरबीआई भी अपने जो कमर्शियल बैंक्स हैं, मेंबर बैंक्स हैं, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उनको टाइम टू टाइम लोन भी एडवांस करता है अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. तो इस तरीके से हम इसे बैंकर्स बैंक भी कह सकते हैं कि ये बैंकों का भी बैंक है. जब भी किसी बैंक को किसी तरह की भी रिक्वायरमेंट रहती है, फाइनेंशियल एडवाइजरी की जरूरत पड़ती है, एट दैट टाइम द आरबीआई प्रोवाइड सजेशंस एंड ऑल द facilities have been provided by the RBI to the commercial banks.
Now the supervision function. Under the supervision function, RBI supervises the banking operations of the various commercial banks. क्या करता है ये? Being a supervisor, ये supervise करता है कि क्या सभी बैंक्स प्रॉफिट सिचुएशन में हैं, उनकी लिक्विडिटी को चेक करता है. अगर किसी बैंक का लॉस में जा रहा है तो दो बैंकों को वो आपस में मर्ज भी कर सकता है, जैसा कि अभी आपने देखा है कि येस बैंक को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया है एज इट वाज इन द स्टेट ऑफ लॉस. इन द वेरी सेम मैनर वेरियस टाइप ऑफ लिक्विडेशंस, अगर किसी बैंक को लिक्विडेट करना है तो लिक्विडेशन पोजीशन अच्छी नहीं है तो मर्जिंग का काम करता है, अमेलगमेशन का काम करता है. किसी बैंक को अपना एक्सपेंशन करना है, अपनी नई ब्रांचेस खोलनी है तो उनको परमिशन देने का काम भी आरबीआई का होता है. ये भी ध्यान रखना कि जो आरबीआई रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है क्या सभी कमर्शियल बैंक उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर सुपरवाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक एज इट इज हैविंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. इसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है बैंक अपने टोटल डिपॉजिट्स के से कई गुना ज्यादा डिपॉजिट्स लोगों को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं. तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि बहुत से डिपॉजिटर्स इकट्ठे ही बैंक के पास अपना पैसा मांगने के लिए आ जाएं, तो उस टाइम पे बैंक की लिक्विडिटी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं होती. ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में बैंक क्या कर सकता है, कोई भी कमर्शियल बैंक है वो क्या कर सकता है, दूसरे जो कोलीग बैंक्स हैं उनसे फंड्स की डिमांड कर सकता है. लेकिन अगर वहां से भी उन्हें कोई डिमांड्स नहीं उनकी फुलफिल हो पाती तो एज ए लास्ट रिसोर्ट जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास जाकर उनसे फंड्स की डिमांड कर सकते हैं और आरबीआई उनको अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी फंड्स प्रोवाइड कर देता है. तो दिस फंक्शन इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई या सेंट्रल बैंक. नाउ व्हाट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का. जो भी बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो हार्ड कैश लेके नहीं घूमते, वो बैंक्स में अकाउंट्स में ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं. तो इस तरह से 2-3 महीने के बाद हर एक बैंक के आपस में क्लेम्स खड़े हो जाते हैं. उन क्लेम्स को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई सामने आता है. आरबीआई 3 महीने के बाद एक मीटिंग कॉल करता है. उस मीटिंग में क्योंकि आरबीआई के पास सभी बैंकों के कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स एज ए सीआरआर रखे होते हैं कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में, तो आरबीआई सभी बैंकों को आदेश देता है कि आप अपने अपने क्लेम्स रिप्रेजेंट करें. उन क्लेम्स को देके उनको रिकनसाइल करके मिनिमम कैश यूज करके वो आपस में एक दूसरे के अकाउंट को रिजोल्व कर देता है. मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं. सपोज एक बैंक है ए, दूसरा बैंक है बी. ए बैंक कहता है कि मुझे बी बैंक से 60 लाख करोड़ रुपया लेना है और बी बैंक कहता है कि मुझे ए बैंक से 50,000 करोड़ रुपया लेना है. तो इस तरीके से मिनिमम बैलेंस अगर ए बैंक बी बैंक को 10,000 करोड़ रुपए की पेमेंट ले ले तो उनसे आपस में मिनिमम बैलेंस यूज करके आपस में एक दूसरे के जो क्लेम्स हैं उनको रिजोल्व किया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जिसमें कि बैंकों के आपस में जो क्लेम्स हैं उनको सेटल किया जाता है. ये भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है. इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मैं आपको बाद में कराऊंगा. दिस इज कॉल्ड द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई. ये अलग से ही मुद्दा है जो कि हमारी अगली यूनिट में आएगा. ये कॉमन मुद्दा है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे. अब इस चैप्टर में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि बैंक जनरली क्वेश्चन पेपर्स में पूछ लिया जाता है. वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा. थैंक यू सो मच.